तो भैया बात कुछ ऐसी है कि जय एडवांस को बस गिने चुने दिन रह गए हैं एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट कि तुम लोगों को लास्ट डे पे क्या क्या करना है, वन डे बिफोर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम के दिन में क्या करना है। तो जिसकी भी एडवाइस सुन रहे हो, मैं पूरा देखने के लिए नहीं बोल रहा, जिसकी भी एडवाइस ले रहे हो, जिसका भी सुन रहे हो तुम, उसको पूरा देखना। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आधा अधूरा ज्ञान लेके तुम ऐसे एग्ज़ाम में चले जाओ और फिर आज बाद में किसी और को ब्लेम करो, ठीक है। और हमको भी टीचर्स ने यही एडवाइस किया था, ठीक है। और नोट डाउन करना चीज़ों को, क्या क्या करना होता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, बहुत टाइम कम है तुम्हारे पास वैसे भी, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर जूनियर्स, ऑल द बेस्ट। Hi, this is Keshav Singhal from Electrical Department, IIT Bombay, and I've been asked to tell you about things to do, things not to do before JEE Advance, a day or two prior and during the advance exam. I think it's really important not to take stress a few days before exam that you may have not covered the entirety of the syllabus and you may feel that some things are left out or some things are not as clear as they should be. Or oftentimes we feel anxious that a question might come from the very subject or the very topic that you're not good at, and what will you do in the exam if that comes. So don't take stress about that. It's very unlikely, if you prepared well, that your exam will go wrong. What can go wrong is that you might take a lot of stress a day prior or during the exam and flunk it all up. So try not to do that. And during the exam, especially between paper 1 and paper 2, the 1.5 hour or 2 hour break, don't try to discuss the exam with others, don't try to talk much with others. Eat something light, don't eat something like aloo puri or whatever. Don't eat something heavy, eat something light, like a bit of snacks, some fruits, and then go give the exam. In the morning itself, eat something light, a few pieces of bread or some roti chapati, not something heavy. And also, sleep well before the exam. Go to bed at 9 p.m. or 10 p.m. just after dinner. Don't stay up till 12 a.m. or 1 a.m. Sleep early, reach the exam center early. Make sure you're carrying all the papers, all the necessary documents, pen, paper, whatever is needed. Pack it all up the night before. And that's it. Thank you for watching. All the best. हाय गाइस, दिस इज़ आकांक्षा। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT बॉम्बे। सो लास्ट 2-3 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है, नए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं। यू जस्ट हैव टू रिवाइज जो भी आपने फॉर्मूला शीट्स बना रखे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। जो थोड़े वीक एरियाज़ हैं, वीक टॉपिक्स लगते हैं, उनको वापस एक बार गो थ्रू कर लो। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं एडवाइस करूँगी कि लाइक कुछ मत पढ़ो, बस अपना माइंड एकदम शांत रखो एंड लास्ट मिनट बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहिए। और एक दिन पहले अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा है तो लाइक मैक्स टू मैक्स फॉर्मूला शीट वापस रिवाइज कर लेना। एंड एग्ज़ाम के पहले वाली रात यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि एग्ज़ाम के पहले वाली रात थोड़ी एनजाइटी वगैरह होती है, तो लोगों को नींद नहीं आती है। सो लाइक ट्राई टू गो टू स्लीप एट 8:30 या 9, ताकि आपको लाइक 2-3 घंटे बाद भी नींद आए तो आपकी एक अच्छी नींद पूरी हो जाए। So all the best for exam, guys. I know you're going to do well. So this is Vidya. I'm from the Computer Science Department from IIT Bombay. And now, so what should you actually do on your last day? So I suggest to get a good amount of sleep. You don't do like solving papers the whole day and studying overnight. It's good to have good rest. If you want to revise something, do it till evening, and then you just go for a walk or maybe play some sport, and just get to bed early. Just make sure to get to bed early. And what else should you do? You can, instead of revising, you can just try to find some hacks, some paper hacks. Like sometimes when you have no idea about the question, then you can just figure something out from the options. There are some tricks like this, and you can just see some paper hacks, ways how you can solve a question without understanding the total content and without having the idea of what is actually going to happen. And just try to, you can just, if there is no more negative marking, if there is less negative marking, then you can attempt. If there is some 50-50 chance, then you can try to attempt it, and you can try to hack the paper a bit, like from if it's multiple choice, then you can try to figure out something from the options. If you like
if you assume that one option is true, then you can get some other option. You can do something like this. You should just believe that you did your best, and you should believe that everything will be all right. And it's important not to panic and have a good night's sleep. So that's it. చాలా బాగా రాయండి ఎగ్జామ్. ఏమీ అవ్వదు, అసలు టెన్షన్ పడకుండా చాలా బాగా రాయండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. మీకు ఏం కావాలో అది వచ్చేస్తుంది, ముందు వస్తుందని నమ్మాలి. యూ షుడ్ బిలీవ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. సో ఆల్ ది బెస్ట్. Just keep your spirits up and you'll just crack it. So hi, this is Avinash from IIT Bombay MEMS. तो like टिप्स के यहाँ पे मतलब हम बात करते हैं, तो जो एग्ज़ाम रहेगी एडवांस की, उसके सबसे पहले तो पहले दिन पे बहुत अर्ली उठो, अराउंड 6 o'clock 7 o'clock को उठ जाओ, ताकि आराम से जो तुम लोग का पूरा डे रहेगा, सोना मत। रात को फिर तुम्हें अपने आप नींद आ जाएगी। और अगर तुम सो के बीच में 10 o'clock को उठा, 11 o'clock को उठा मॉर्निंग में, तो डायरेक्टली फिर तुमको रात को नींद नहीं आएगी, कल का टेंशन रहेगा कि कैसा जाएगा पेपर, कैसा जाएगा। तो उससे अच्छा है कि 2-3 दिन पहले ही एडवांस में मतलब हैबिट डाल लो कि लेट मतलब कि जल्दी उठने की। फिर जैसे तो अभी तुम लोग जल्दी उठ गए 5 o'clock 6 o'clock को, तो नून में नहीं सोना है। फिर डायरेक्टली तुम लोग रात को जल्दी सो जाओगे 10 o'clock 11 o'clock के अराउंड। तो मॉर्निंग में उठे तुम लोग अराउंड 8 o'clock 9 o'clock। फिर ये चीज़ होती है कि कुछ ऐसा खाओ कि पूरा लाइक 9 to 5 जो भी तुम लोग का रहेगा, उसका तुम लोग ऐसे हेल्थ एनर्जेटिक रहो, एकदम वाइब्रेंट रहो, ताकि क्या फिर तुम लोग को ऐसे नींद नहीं आनी चाहिए बीच में। फिर एग्ज़ाम के ड्यूरिंग जो आईडी कार्ड होता है, जो भी वेरिफिकेशन होता है, उसको पहले ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि क्या फिर लोग बाद में तुम लोग को लाइन में क्यू में खड़ा करते हैं, और फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन में टाइम जाता है, फिर तुम लोग अलग से बैठना पड़ेगा, फिर ऐसे हेड डाउन करके बैठना पड़ता है। फिर और कुछ फ्रूट्स लेकर जाना। फ्रूट्स से क्या होता है ना, फ्रूट्स अगर मॉर्निंग में खा लेते हैं, फ्रूट्स हो गए या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो इनको अगर तुम लोग मॉर्निंग में खा लोगे, मॉर्निंग में होगा और एक बार ब्रेक में हो गया, तो ये चीज़ का तुम लोग का 3 hours तक फ्रूट्स डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली, और तुम लोग का मतलब ऐसे लगेगा भी नहीं कि हैवी स्टमक है। क्योंकि बहुत लोग होता है कि लोग ब्रेक में खा लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हैवी स्टमक हो गया है, और फिर बाद में 1 घंटे तक वो लोग होश रहते हैं, फिर 2 घंटा बेहोश हो जाते हैं एग्जाम के ड्यूरिंग, ऐसे करके। और फिर अब है कि जो जिनका पेपर 1 का अच्छा गया हो, उनका पेपर 2 खराब हो जाए, तो पेपर 1 अगर तुम लोग खराब भी गया है, तब भी उसको मतलब कैसे इन्फ्लुएंस होने मत देना, पेपर 2 को ज़्यादा बेटर करना, रेडी रहना, क्योंकि क्या लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं बीच में, तो डीमोटिवेट मत होना। और उसके बाद में अपना जो भी रहेगा, पेपर 2 भी अच्छे से करो, पेपर 1 भी अच्छे से करो, और एट लास्ट जो भी आए अच्छे से बाहर निकलो, बस खुशी खुशी। बेस्ट ऑफ लक। My name is Tejas Srivastava from Department of Civil Engineering, IIT Bombay, and considering you have studied for last 1 or 2 years, so it's your final day, so you don't have to study more, but what you have to do is revisit your concept without opening any of your notes, books, copies, just in your mind. Like you have to resonate what all you had learned through your this stage journey of 2 or 3 years or 1 year, and be chilled out, cause that's what affect your performance at large. If you are chill, so your performance would definitely boost up, because you have studied all, so you just don't have to study more. I'm Kajal from CC department at IIT Bombay. तो सिंस आज जेई का लास्ट डे है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा पैनिक मत लेना और कुछ नया स्टार्ट मत करना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और मॉक टेस्ट वगैरह भी मत देना, क्योंकि अगर ज़्यादा एक ख़राब गया तो डीमोटिवेशन आएगा, और सही गया तो फिर एक्साइटमेंट होगा। तो कुछ नया ऐसा मत करना, और एक जल्दी सो जाना। नींद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट डे वो रिफ्लेक्ट होगा कि आप कितनी नींद लेके मतलब जाते हो। और हल्का फुल्का खाना खाना, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या उल्टा सीधा मत खाना, और ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में मत सोचना। अभी जो आपका प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट आएगा, तो अभी रिज़ल्ट के बारे में मत सोचना। Hello, this is Abhinav Gunawat from Electrical Engineering Department. लास्ट 2 days के लिए अगर टिप हो, अगर आपने अभी तक मॉक पेपर नहीं किया, लास्ट डे के पेपर नहीं किए, तो उनको कर लो। लास्ट डे पे बिल्कुल मत पढ़ना और स्ट्रेस मत लेना, एकदम चिल। और एग्ज़ाम डे की अगर कोई टिप दूँ मैं, तो अगर तुम्हारा पहला पेपर ख़राब गया तो ऐसा मत सोचो कि मेरा ही गया, सबका गया ख़राब, सबको सेम लेवल का आता है। और मतलब सेकेंड पेपर में कंपलसेट करने की कोशिश करो, बस यही दूंगा मैं टिप्स। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस। Hi guys, I'm Snigdha Arya. I'm from the Chemistry Department of IIT Bombay.
I know that you all are stressed out because you all might be stressed out because JEE Advanced is coming up, and I'm pretty sure that you must have received all sorts of advices from your teachers and everybody around you for the main day on how you should solve the paper, on all sorts of strategies and everything. But one thing that you should know, and I would like to tell you, is that you can do nothing on the last day in terms of studies for JEE Advanced. So I would say I would tell you to refrain from studying new topics, and if you want you can revise, but revising will not really help for the paper. It's JEE Advanced, as you know. It's never about the formulae or revising topics. So instead of getting nervous about what you've studied and what you've left in the syllabus, you should focus on staying calm and also focus on the strategy on how you're going to solve the paper. So organize your thoughts on that, and most importantly, organize your documents and also yourself. So one thing is eat properly and get a very good sleep. And I'm pretty sure that you will be anxious and stressed out, which will affect your sleep definitely. But it will tire you out on the main day, so which will negatively impact the paper, and you don't want that. So take a good sleep, take a good 8 hours sleep before the paper. Visit the center of the paper, and also one thing is that don't stress about the result. You have worked hard for the past 2 years. You know what you've studied and what hard work and what effort you've put into the paper. You have given your 100%, and you will definitely be rewarded. So don't stress out, stay calm, stay focused, and all the very best for your exam. Thank you. सबसे पहली एडवाइस मेरी ये रहेगी, ये मत सोचना कि लास्ट डे भी अब हम नया कुछ पढ़ लेते हैं. कोई सेंस न्यूज़ पढ़ने का, उससे तुम अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि जो पढ़ा है वो तो आएगा नहीं, और जो पहले का पढ़ा है वो भी कंफ्यूज करोगे. तो सबसे पहली चीज़, कुछ नया मत पढ़ो, कुछ पढ़ो ही मत. इनफैक्ट चिल करो, रिलैक्स करो, मज़े करो, अच्छा सो, अच्छा खाओ, खूब अच्छे से रिलैक्स करो. क्योंकि अब व्हाट मैटर्स इज़ कि एग्ज़ाम टाइम पे तुम कितने रिलैक्स्ड और कितने शांत दिमाग से एग्ज़ाम देते हो. देखो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि जो भी वो पूछे वो सब आए. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो तुम्हें आता है वो तुम कितनी एक्यूरेसी से करते हो, और वो तभी आएगी जब तुम अपने आप को रिलैक्स कर दोगे. ठीक है, बहुत पढ़ा यार, फेथ रखो खुद में, कॉन्फिडेंस रखो, खूब कॉन्फिडेंस रखो, और बढ़िया से मस्त जाओ पेपर देने, मस्त सो के आराम से नींद लेके पूरी, बढ़िया माँ बाप का आशीर्वाद लो और एग्ज़ाम देने जाओ, सब अच्छा होगा. लास्ट वन डे बिफोर JEE एडवांस बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाई नहीं करना है, पूरा चिल करना और कंसंट्रेट करना. आपने जो पढ़ा है उसको आप बैठे बैठे मेमोराइज़ करो, ध्यान मिलाओ कि क्या क्या पढ़ा है आपने. बिल्कुल ही घबराना मत, ज़्यादा क्वेश्चन मत देखना जिससे कि आप घबरा जाओ. सो दिस इज़ ऑल इट इज़. तो बेसिकली अब देखो लास्ट टाइम आ गया है एग्ज़ाम का, तो इस टाइम पे बहुत घबराहट होती है कि कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, कैसा पेपर आने वाला है. तो सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा सा चिल करो, अपने अंदर बिलीफ रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने मेहनत करा है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है. तुमने जितना करा वो तुम्हारे सामने आएगा, तो उसके लिए बस वेट करो और सही टाइम पे सही चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करते रहो. क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में रिकॉल नहीं कर पाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है. पेशेंस मत खोना, पहला क्वेश्चन नहीं बने इट्स ओके, दूसरा क्वेश्चन नहीं बने इट्स ओके, मूव ऑन करते जाओ. जब से क्वेश्चन बनना शुरू होगा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट. मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट डे है तो रेस्ट अच्छे से करो, मतलब अच्छे से सोना लास्ट डे में, और ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है. किसी से फालतू में ऐसे लोगों से बात नहीं करनी जो तुम्हें थोड़ा टेंशन दे सकते हैं, उनसे दूर रहो. ज़्यादा कॉल वॉल मत करो, अच्छे से दो पेपर, और पेपर अच्छे से अटेंड करो. जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो करो, जो नहीं आते हैं उनसे मत जाओ, और बहुत अच्छे से रेस्ट करके जाओ. सब अपना एडमिट कार्ड और ID कार्ड और आधार कार्ड जो भी चाहिए होता है वो लेके जाओ, और अपने ड्रेस कोड देख लेना, वहाँ पे पानी ले जाना. और अगर एग्ज़ाम की बात है तो अगर एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा माइंड बहुत ही स्पीड से रेस करने लगे, तो थोड़ी देर के लिए एक शांत हो जाओ, काम हो जाओ, और बिल्कुल परेशान मत हो. और जितना किया है उतना बहुत अच्छे से किया है, बस वही है. अब सबसे लास्ट डे पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हम. और ऑल द बेस्ट. I'm Pavitra Pilli, pursuing Mechanical Engineering from IIT Bombay. As you all know, JEE Advanced 2021 is on October 3rd. So, by the time you watch this video, you might be having 1 week or less than 1 week left for your exam.
At this stage, the game changes. Till now, you used to focus on covering the syllabus and solving the mock papers and stuff. But now you need to learn something called as handling pressure. You know what? Most of the people who are really capable of solving advanced paper will not solve it and will regret it later because they don't know how to handle the pressure in that moment. So I request you to make sure that this doesn't happen with you. And how you can do this is that I think you can try solving mock papers considering it as a real advanced paper. That would be helpful, I guess, and try this way. And when it comes to mock test, solving the previous year advanced question papers would be a better option, I guess. You can try your own way, but this is better. That's what my suggestion is. So, as I said, try giving a mock test on every alternate day to maintain your momentum, and make sure that you do not give any mock test a day before the exam. It's really important for you to stay peaceful in the last day. That's really crucial. And a day before the exam, please don't try to prepare anything. Like, just try to relax yourself, listen to your favorite music, imagine yourself cracking the exam and getting admission into your dream college. That stuff will be really helpful in giving positive affirmations to your brain. And other things to be taken care of at this stage is that your health. And your health matters the most. So make sure that you give special attention to the food you are taking in and avoid junk food. That's a sincere suggestion, avoid junk food. So, my dear junior, all the best for your exam and I hope to see you soon here in IIT Bombay. 2 दिन पहले खाली अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना, लाइक एग्ज़ाम टाइम पे तो मत ही सोना, रात को 8-10 घंटे सो. और सेकेंडली खाने का ध्यान रखो, ज़्यादा ऑयली या बाहर का भी कम से कम 2 दिन 5 दिन तो मत ही खाना. Hello guys, Gaurav here. I am from chemical department. So like you all are worrying about like what should I do before one day of JEE advanced exam. Okay, so it's a big question for all of us and we also face the same situation. तो देखो बात तो ऐसी है कि बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, नॉर्मल दिन है, एकदम नॉर्मल की तरह दोगे तभी अच्छा होगा. अब बहुत टेंशन लोगे, परेशान होगे तो कुछ नहीं होगा, है ना. तो एकदम चिल करो, एक दिन पहले ज़्यादा पढ़ो मत. कोई एग्ज़ाम वगैरह अलग से मॉक टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है. एकदम चिल रहो, थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह लिखे होंगे अलग से, वो एक बार रिवाइज वगैरह कर लेना. और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना, हंसी खुशी में मतलब अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा माहौल बनता है. और रात में नींद लेना ज़रूरी है, मतलब सफिशिएंट नींद. ये नहीं कि लाइक 10 आवर्स सो रहे हो, 12 आवर्स सो रहे हो. जितना सोते हो जस्ट उससे 1.5 आवर या ज़्यादा लाइक 6 आवर्स सो रहे हो तो 7 आवर्स थोड़ा सा सफिशिएंट नींद ले लेना. देन इन नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करके जाना. ऐसा नहीं कि खाली पेट जा रहे हो, क्योंकि फिर चक्कर वगैरह कुछ आते हैं, ऐसा होता है ऐसे. और सबसे मेन बात ये होती है कि देखो 2 पेपर होते हैं एडवांस के, तो एक पेपर के बाद होता ही है कि देखा है मैंने लोगों को परेशान हो जाते हैं लोग, अच्छा नहीं गया, ये नहीं. भाई सबके साथ होता है, मेरे साथ खुद हुआ है. पहला पेपर अच्छा नहीं गया बट दूसरे पेपर में अच्छा करते, तो है ना एकदम एंड टाइम तक बिल्कुल चिल रहो, है ना. मतलब टेंशन ही, मतलब पहला पेपर कैसे गया, सेकंड कैसे गया, तुमने बेच दिया है, जितना दोगे सबको डिफिकल्ट जा रहा है भाई, तुम्हें अकेले को थोड़ी जा रहा है ना. मस्त करना, कूल रहो, चिल करो. हेलो गाइस, दिस इज़ वार्निका अग्रवाल. आई एम इन केमिकल इंजीनियरिंग. सो JEE एडवांस के लिए मेरी तरफ से यही टिप्स हैं कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल को हाथ नहीं लगाना है. जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करके जाना है. जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है. एंड पेपर ड्यूरेशन में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा. जो भी क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग हैं उन्हें आप बाद में कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन ईजी हैं आप पहले उन्हें ट्राई करेंगे. एंड पेपर से पहले रेस्ट करके जाना है. रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं करना है कि पेपर से एक नाइट पहले हम पूरी नाइट जाकर जा रहे हैं. नहीं, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है. जो आपने पूरी 2 साल मेहनत की है डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. एंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी तो तुक्के नहीं मारने हैं. और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कंटिन्यूसली, लाइक आपने एक ट्राई किया नहीं बना, दूसरा ट्राई किया नहीं बना, तो आपको गिव अप नहीं करना है. आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है पेपर में. आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं. इतने सारे क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आपसे अगले क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे अगर आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे तो. सो लाइक मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, don't try very new things near the exam. Don't bring major changes in your sleep cycle or in your study cycle. Just, it shouldn't be more than 1 or 2 hours. If you want to bring some change, try it before at least 10 days so that you can be you won't be confused or it won't feel new to you. And secondly, एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा मत खाना, टेक लाइट फूड. एग्ज़ाम उखाड़ने के बाद बिरयानी खा सकते हैं, उस दिन जस्ट टेक लाइट फूड. मुझे सबको पता है, फिर भी आई एम जस्ट रिवाइजिंग.
And third point, be prepared. Advanced exam is mainly about your reflex and your reaction. कुछ भी हो सकता है, so don't fix like मैं इसी तरह करूँगा, I would go in only this way, I will only attempt PCM or CPM, ऐसा don't think. Just be ready to for any challenge, क्योंकि it's exam man, it's an advanced exam, so you know that right, कुछ भी हो सकता है, so just be prepared for anything. And fourth point, get all the things ready much before the exam, at least 1 or 2 days. In the last day we may forget, and due to which so much of halla gulla will be there, so just avoid that as far as possible. And last and final, पक्का एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पहले ही जस्ट गेट एन आइडिया रिगार्डिंग वेयर इट इज़, क्योंकि यू ऑल नो दैट एडवांस एग्जाम जनरली सेंटर्स विल बी वेरी न्यू, एंड मेरे साथ वैसा हुआ था, so just make sure that you know that exam center much before your exam. That's it. So, and last and final, this is just like one more mock exam. Don't be so much of serious regarding this. Don't be tense. Just give your best. Automatically you will be rating well. अच्छे से देना. All the best. यहाँ पे आ जाना, मिलते हैं. तो यार लास्ट डे पे देखो पेपर तो सॉल्व नहीं करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है तो वो कर सकते हो, थोड़ा चिल रहो, चाहे तो कोई मूवी देख लो, बस चिल रहना, बस कोई टेंशन नहीं लेना, कॉन्फिडेंस रखना, ये मेन बात है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो. नर्वसनेस आएगी थोड़ी, आती रहती है, हमें भी आई थी, बस कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे. ऑल द बेस्ट गाइस, फोड़ के आ जाना. एग्ज़ाम के 2 दिन पहले क्या करना चाहिए, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, कोई एग्ज़ाम वगैरह मत देना, बस आप थोड़े से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर सकते हो, करना चाहिए. हेलो गाइस, दिस इज सचिन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT बॉम्बे. एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको नहीं पढ़ना है और कोई टेस्ट नहीं देना है. और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. गुड लक. हेलो गाइस, लास्ट डेज पे पढ़ाई लिखाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर आपको छोटा मोटा कोई फॉर्मूला रिवाइज करना हो तो कर देना, और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम चिल रहना और पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना, इससे अच्छी फीलिंग आएगी. और बाकी सफिशिएंट नींद लेना, ऐसे नहीं हो कि बहुत कम नींद में आप जा रहे हो एग्ज़ाम का पेपर देने. और बाकी ऑल द बेस्ट. Yeah, hello friends, this is Jatin from Aerospace Department IIT Bombay. So मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगा ड्यूरिंग जेई एडवांस पेपर. आप अगर मान लो आपका पेपर 1 ख़राब जाता है तो आप पेपर 2 पे फोकस करें, बिकॉज पेपर 2 पेपर 1 बोथ आर डिफरेंट. सो अगर आपका एक पेपर ख़राब चला गया तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरे पेपर पे फोकस लगाना है और उसको अपना 100% देना है. इन मेरे केस में मेरा फर्स्ट पेपर बहुत ख़राब गया था, देन आई बिलीव इट कि मैं सेकंड पेपर फोड़ दूंगा. अपना एग्ज़ाम स्लीपिंग टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्लॉक के बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए. और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द बेस्ट. All the very best. All the best. All the best. All the best. गुड लक. So all the best. Best of luck. All the best. All the best. Best of luck. All the best. All the best. All the best.